So we have started the revision classes. So within the last class we are discussing about what are the features of management. So in this video we are going to discuss about what are the objectives, or you can call the aim of management, as well as what are the importance of management. Okay. So what are the objectives of management? So basically there are three objectives of management. One is organizational objective, social objective and personal objective. Okay. So objectives of management means we are deciding otherwise what is our aim to run this business. Okay, one thing, basic objectives of any organization, any business, to earn a profit. Okay, so rather than that is it becomes the organizational objective. Earning a profit, growth of the business, it is a basic objectives of any kind of business organization. But rather than that, we have the social objective as well as personal objective within our business. Okay, so which are those we will discuss in this class. So objectives of management, within that first one, that is organizational objective. So from this business, from this organization, what we want, what should be our end result, what is our aim to run this business. Okay, so one aim is growth of your business, means your business should be expand and profit maximization. Okay, so any kind of business we are earning the adequate profit from that business, and profit maximization. These are the basic objectives of any kind of business. Okay, so जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो काम कर रहा है, मैनेजर जो काम कर रहा है, उनके थ्री ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं. एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब कौन सा भी बिजनेस रहने दो, कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, उसमें प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. हमारा बिजनेस बड़ा करना, दैट इज द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, इट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. वो छोड़ के भी कोई सोशल ऑब्जेक्टिव है, वो छोड़ के भी कोई भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सो विदिन दैट आल्सो थ्री concepts are there. One is the survival, profit and growth. Survival, profit and growth. Okay, so what is the survival? So basic three objectives of organizational objective, that is survival, profit and growth of business. Survival means what? Exist in a competitive market. So exist in a competitive market. Your product, your business should be compete with your competitor, and you can sustain within a market. That is a survival. Survival, the meaning of survival. Okay, so survival का मतलब क्या है? अभी जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, आप अकेले आदमी नहीं हो. वो बिजनेस जो आप कर रहे हो, आप अकेले आदमी नहीं हो. उसी तरह का बिजनेस करने वाले मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बट उनके प्रोडक्ट से, उनके बिजनेस से और आपका बिजनेस, आप कॉम्पिटिटर बने, एक दूसरे को कॉम्पिटिटर बने. तो मार्केट में किसका ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा, वो प्रोडक्ट सेल आपका ज़्यादा हुआ तो आपका बिजनेस सर्वाइवल हो रहा है. नहीं तो आपने कुछ भी एक्टिविटीज, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्राइस ज़्यादा है, मार्केटिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं किया है, तो कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट कैसा जाएगा? नहीं जाएगा. सो आपका प्रोडक्ट मार्केट में रहने के लिए, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए आप रेडी होना चाहिए. दैट इज द सर्वाइवल. आप कॉम्पिटिशन में आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, बट आप मार्केटिंग एक्टिविटीज नहीं किए, प्रमोशनल ऑफ योर गुड्स आर नॉट डीड, तो कस्टमर के पास आपके प्रोडक्ट नहीं जाएंगे, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट के साथ आप कंपेयर नहीं करोगे, तो यू कांट सर्वाइव विदिन अ मार्केट. सो दैट इज द सर्वाइवल. Okay, next one, profit. So any kind of business, any kind of organization, they have the basic objective to earn or adequate profit, otherwise profit maximization. So earn or adequate profit, essential for survival and growth. Okay, so what you are invested within your business, from that you should earn or adequate profit within your business. Due to that profit, why profit is important. जितना आपने पैसा दिया है बिजनेस के लिए, उससे ज़्यादा आपके बिजनेस में पैसा आना चाहिए. सो दैट व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा अमाउंट, व्हाट इज दैट प्रॉफिट. सो इस किसके लिए इम्पोर्टेंट है? एक तो सर्वाइवल के लिए, मतलब मार्केट में कंपटीशन करने के लिए कॉम्पिटिटर के साथ, एंड आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए वो प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट वन, ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस. सो ग्रोथ मीन्स व्हाट? बिजनेस
एक्सपांड। ओके, बिजनेस बढ़ाना। बिजनेस बढ़ाना मीन्स एक्चुअली क्या करना, अभी स्मॉल स्केल में स्टार्ट किया है, मीडियम स्केल, गो फॉर द मीडियम, मीडियम से हायर लेवल स्केल में जाना चाहिए। मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उतना ही कंटिन्यू करोगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। मतलब क्या है, मेजर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बिजनेस ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेल्स। मतलब आपका सेल्स इंक्रीज होना चाहिए, अदर और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब आप 2 एम्प्लॉयज लेके आपका बिजनेस चलाएंगे तो इक्विपमेंट ज़्यादा लेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयज लगेंगे। अदरवाइज सेल्स इंक्रीज हो रहा है आपका, तो दैट इज द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। अदरवाइज व्हाट आर योर प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन है उसका सेल्स इंक्रीज हो रहा है। अभी 1 ईयर में आपका 100 सेल्स इंक्रीज हुआ, अदरवाइज 10% सेल्स इंक्रीज हुआ तो आपका ग्रोथ हो रहा है बिजनेस में, दैट इज द थिंग। ओके, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इट शुड बी कीप इट इन माइंड। ओके, बिकॉज बिजनेस अर्निंग रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी। ओके, सो हम हमारा बिजनेस कैसे चलाते हैं, जो भी सोसाइटी में, इस समाज में जो भी प्रोडक्ट चीज़ें अवेलेबल है उनकी मदद से हम हमारा बिजनेस चलाते हैं। तो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द सोशल वर्क। सोशल वर्क मतलब कोई तो हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनवाना, रोड बनवाना, नहीं तो वाटर फैसिलिटी देना, ये चीज़ें दैट इज ऑल्सो सोशल एक्टिविटीज। बट सभी लोगों को ये चीज़ें करने में उनके पास उतना पैसा होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। बिकॉज सोशल वर्क इट इज़ वॉलंटरी बेसिस, कोई भी कंपल्शन नहीं है चीज़ें करने में। बट बेसिक जो भी सोशल चीज़ें हैं आप बिजनेस करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज द की गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। मीन्स सपोज यू हैव द प्रोडक्शन इंडस्ट्री, otherwise you have the service, your organization is providing the services to your customer। okay, so जो भी बिजनेस है आपका, इतने भी प्रोडक्शन ऑफ गुड है, नहीं तो सर्विस दे रहे हो, तो वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। दैट शुड बी अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट शुड बी देयर। बैड क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे दैट इज गोइंग टू बी डेंजरस टू योर कस्टमर एज वेल एज योर फीडबैक, इट इज ऑल्सो बिकम अ नेगेटिव। आपने अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों को दिया, सो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, कस्टमर आपके प्रोडक्ट परचेज करने के लिए डिमांड में रहेगी। नहीं तो बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने कस्टमर को दिया तो कुछ तो एक्सीडेंट हो गया, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके, दैट्स व्हाई यू शुड प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू योर कस्टमर्स। नेक्स्ट, रीजनेबल प्राइस। सो इन टर्म्स ऑफ टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपने आपका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर ज़्यादा आपका अप्रोच नहीं करेंगे। कस्टमर अप्रोच नहीं करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू अर्न अ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है दैट शुड बी एडेक्वेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ओके, और रीजनेबल, कस्टमर को भी उतना उस प्रोडक्ट के लिए कितना रीजनेबल प्राइस है उतना ही रखना चाहिए। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सो जो भी चीज़ें आप आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉज एनी एयर पोल्यूशन, इट शुड नॉट बी कॉज एनी वाटर पोल्यूशन, इट शुड नॉट बी कॉज एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, इट शुड नॉट बी कॉज, इट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन में जो भी वेस्टेज हो रहा है वो आप डायरेक्टली वाटर में थ्रो कर रहे हो, डायरेक्टली ओपन इन्वायरमेंट में थ्रो कर रहे हो, सो इट कॉजेज द पोल्यूशन। So that's why you should not do such kind of things. Next, employee opportunity. So आप क्या बिजनेस चला रहे हो तो आप लोगों को काम दे सकते हो। So लोगों को काम देने का अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। मीन्स यू ट्राई टू गिव द more work, you try to arrange the more work so people can take the advantage to earn their income। सो आपके बिजनेस के थ्रू लोगों को काम मिले और लोगों को काम मिला है मतलब यू आर गोइंग टू गिव अ सैलरी, सो उस सैलरी से उनका घर चले। सो जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करो। नेक्स्ट, अवॉइड एंटी सोशल एक्टिविटीज। सो अवॉइड एंटी सोशल एक्टिविटीज मीन्स व्हाट, यू शुड नॉट डू सच थिंग which is affected to our society। One means what is your production, what is your services,
means you try to avoid the pollutions. Okay, that is the second thing. Antisocial activities means you are not paying the taxes, आप टैक्स नहीं भर रहे हो, that is antisocial activity रहा. नहीं तो एक एग्जांपल ले लो, अभी ड्यू टू द कोरोना सिचुएशन जो भी सैनिटाइजर का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है. ओके, सो सैनिटाइजर का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ने की वजह से जो भी आपको WHO, जो भी हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक केमिकल फॉर्मूला डिफाइन किया है. मतलब सैनिटाइजर में कौन सा केमिकल कितना परसेंट का रहना चाहिए, वो केमिकल फॉर्मूला डिफाइन किया है. बट लोग क्या कर रहे हैं, वो केमिकल फॉर्मूला वैसा ही होना चाहिए तो ही हम वो वायरस को अवॉइड कर सकते हैं. ओके, बट लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस चलाने के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में कलर डाल के सैनिटाइजर के नाम पे बिक रहे हैं. सो दैट इज एंटी सोशल एक्टिविटीज. सो यू शुड नॉट do such kind of activities within your business. The next one is personal objective. So what are the personal objectives of any business? So this question, what are the objectives of management, it is also important question according to the 4 marks. Okay, so personal objective में क्या क्या आता है, एक तो related to the employees of the organization, personal और individual objective. तो बिजनेस चलाने में प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस बढ़ाना, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव देखा. बट खुद के लिए क्या है वो बिजनेस में, खुद के लिए मतलब एज अ मैनेजर मेरे लिए क्या होगा और मेरे बिजनेस में जो भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनके लिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा. एक तो रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़. सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा काम लगा रहे हैं, कम सैलरी दे रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. सो व्हाट शुड बी योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है आपके बिजनेस से, उनके काम में से दे आर हैप्पी. ओके, दे आर सेटिस्फाइड. सो आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो ही वो उनके काम में 100% उनका डालेंगे. दे आर गोइंग टू give their maximum efficiency for your organization. So try to make a satisfied to your employees. Okay, next competitive salary and cost. So जो भी आप सैलरी दे रहे हो आपके एम्प्लॉयज़ को, it should be a competitive salary. कम सैलरी में काम करवा के लेना, that is also a bad thing. So what is a competitive salary? उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार. सो जो भी सैलरी उनको आती है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे द सैलरी टू योर एम्प्लॉयज. एज वेल एज पोस्ट. सो व्हाट इज अ पोस्ट? इफ दे आर वर्किंग एज अ वर्कर, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडल और हायर लेवल मैनेजमेंट, सो what they have post. So according to their qualification you should provide a post to your employees. नेक्स्ट, गुड वर्किंग कंडीशन. सो जो भी बिजनेस में वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहना चाहिए. सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सभी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन चल रहा है, कोई भी एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहा है. सो ऐसा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन्वायरमेंट कंडीशन है, या एक दूसरे के साथ बात करके मिलजुल के ट्रेनिंग देके डायरेक्शन देके ऐसा चीज़ें चल रहा है, तो एम्प्लॉयज आल्सो गोइंग टू गेट अ मोटिवेटेड. नेक्स्ट, पर्सनल ग्रोथ. So what is the personal growth of your employees means what? You have to provide a promotion. मतलब अभी in this year one employee is joined to your business as a worker. So per year you have to provide the increment. Okay. Suppose you have to provide the training to your employees. After some years you should give the promotion to your employees. So the growth of employees it should be important, comes under the personal objective. Now we are going to discuss about what are the importance of management. Okay, now we are already discussed about what are the objectives of management. Now we are going to discuss about what are the importance of management. Okay. So total according to the syllabus they are given the 6 importance. So one by one we are going to complete them. So first one helps in achieving the group goals. Already we told that within the feature of management, the management it is not an individual activity. With help of group only we can perform the management activity, because to run any kind of organization, take example, there are different departments. Suppose it is a production industry,
So maybe the selling department, planning department, production department, and quality department. So different departments are there. Okay. So aims in achieving the group goals. So each department have their individual goals. Sales department are going to think to increase the sales. Okay. Production department have the goal to provide a good quality of product with the low cost. Production of good quality of product with the low cost. Okay. Planning department with the low cost, they are waiting for the planning. Since each department they have their individual activity. So management. Okay. So management provide. Otherwise, it is going to help to achieve the group goals. Okay. So group goals, one thing, it is a profit maximization for group of business. That is the main organizational objective. So due to the management, we can achieve that goal. So help in achieving group goals का मतलब क्या है? ऑलरेडी फीचर में बताया गया है कि मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, सभी लोग मिलकर ही वो काम करेंगे तो ही मैनेजमेंट एक्टिविटी कंप्लीट होगी। सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन उस वर्क के लिए होना ही चाहिए। एक ने काम किया, दूसरे ने नहीं किया, तो दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड। बिजनेस में प्रॉफिट कमाना, अदरवाइज बिजनेस का ग्रोथ होना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। सो प्रॉफिट कमाने के लिए और बिजनेस का ग्रोथ होने के लिए सभी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सो सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और बिजनेस ग्रोथ में होता है। दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। Next, improve efficiency. So already we know the efficiency means minimum wastage of material, minimum wastage of resources, or what you are doing that should be carried out with a low cost. Okay. So improve efficiency का मतलब है जो भी आप बिजनेस में काम कर रहे हो वो काम कम प्राइस में, कम कॉस्ट में होना चाहिए। So कम कॉस्ट में होना चाहिए मतलब आपका वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इट मे बी द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज बिजनेस में लगते हैं। एक तो अभी एग्जाम्पल ले लो, फिजिकल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्सेज है। अभी फिजिकल रिसोर्स में क्या आएगा, जो भी रॉ मटेरियल लगने वाला है प्रोडक्शन के लिए करने के लिए, तो उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेज। सेकेंड ठीक है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मतलब पैसा, जो भी बिजनेस में आप लगाते हो उसका भी वेस्टेज, पैसे का भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और थर्ड थिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जो भी एम्प्लॉयज आपके बिजनेस में काम कर रहे हो वो भी, उनका भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। उनका भी वेस्टेज मतलब वो लगातार काम में रहने चाहिए। दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम। इफ दे आर वेस्टिंग द टाइम, दे आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन द वर्क। सो वो काम पे ध्यान नहीं दे रहे तो आप खाली उनको सैलरी दे रहे हो। सो जितना उनको सैलरी दे रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट उनसे काम करवा के लेना। सो दैट इज द इम्प्रूव एफिशिएंसी। नेक्स्ट वन, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑलरेडी विदिन द फीचर वी आर डिस्कस मैनेजमेंट, इट इज अ डायनामिक। ओके, मतलब डायनामिक का मतलब है चेंजेस होना। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, due to the external environment, maybe the government policy, maybe the competitors, otherwise due to any factor, due to the external factor मतलब जो भी बिजनेस में चीजें हैं, बाहरी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, सो उस चीजों की वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब वे डिमोनेटाइजेशन बताया, मतलब जो भी 500-1000 के नोट्स थे वो कैंसिल किया गया। उसके ड्यू टू दैट गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे बिजनेस में चेंज हुआ, तो उसके हिसाब से हमारे बिजनेस में एक्टिविटी चेंज करते रहना चाहिए। अभी कोरोना के टाइम में लॉकडाउन था, तो वो बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब वो इन्वायरमेंट की वजह से, उसकी वजह से हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या प्रॉब्लम आ गया, जो हम फेस टू फेस कंडक्ट होते थे वो अभी ऑनलाइन हो रहा है। सो ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस आप अडॉप्ट करना चाहिए। दैट इज द क्रिएट्स डायनामिक। बट समटाइम्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फॉर द चेंज द एम्प्लॉयज आर अपोजिंग फॉर इट। ओके, सो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स। सो दैट टाइम यू शुड बी गो फॉर द मोटिवेशन ऑफ योर एम्प्लॉयज, ओके, एंड ट्राई टू bring the confidence and try to accept that this is a change and you have to accept the thing. So you have to perform such kind of activity. इसका मतलब क्या है, जो भी चेंज हो रहा है बिजनेस में, अभी एग्जांपल ले लो, आपके बिजनेस में एक आपने नया मशीनरी लाया,
बट आपके जो भी वर्कर्स है उनको पता नहीं वो मशीनरी कैसे ऑपरेट करना है, तो वर्कर्स क्या बोलते हैं हम ये काम नहीं करेंगे, सो दे आर अपोजिंग फॉर इट। तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मैनेजर, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको गाइडेंस देना, उनको मोटिवेशन करना, ये आपका काम है। वैसा आप मोटिवेशन करो आपके एम्प्लॉयज़ को, काम सिखाओ, यू आर ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉयज़। सो ऐसा करने से आपके एम्प्लॉयज़ में जो भी चेंज हुआ है आपके बिजनेस में वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। नेक्स्ट वन, हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल गोल्स। Obviously within the personal objective, in last we discussed what are the personal goals. So what are the employees working within your organization, they have their personal goals. Okay, means they have a competitive salary, they should get a promotion, they should have a good post according to their qualification and experience, they should have the opportunity, growth or career opportunity. So such kind of facility you have to provide your employees. मतलब जो भी पर्सनल गोल्स रहते हैं आपके एम्प्लॉयज़ के, आपके वर्कर्स के, वो पर्सनल गोल भी फुलफिल करना एज अ एम्प्लॉयर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपके पास जो भी काम करें उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, उनके एक्सपीरियंस, उनके एजुकेशन जैसा है उसके हिसाब से सैलरी दो, उनका प्रमोशन करवा, उनको ट्रेनिंग दे दो, डायरेक्टिंग कर दो, उनको मोटिवेशन दे दो। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू प्रोवाइड एज अ manager. So it is going to fulfill by the motivation. Next, helps in development of society. So what we discussed within the social objective, so same things it is repeated here. So helps in development of society, that is the thing, you should provide a good quality of product at a reasonable price, create an employment opportunity, your work should be environment friendly, process should be there, avoid the anti-social activities, then you can fulfill this line. So helps in development of society का मतलब क्या है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आपका भी एज अ एम्प्लॉयर और एंटरप्रेन्योर आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट आपके इंडस्ट्री में तैयार हो रहा है, जो भी आप प्रोडक्ट आपके जो भी सर्विस दे रहे हो वो रीजनेबल प्राइस में दे दो। आपकी सर्विस का, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए। लोगों को सपोज आपके बिजनेस के थ्रू लोगों को काम मिल रहा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे दो। और एंटी सोशल एक्टिविटीज अवॉइड कर दो, मतलब अदरवाइज ट्राई टू ब्रिंग द इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस। मतलब पोल्यूशन आपके बिजनेस, ड्यू टू योर बिजनेस पोल्यूशन कुछ तो हो रहा है तो वो यू शुड स्टॉप देयर ओनली। ओके, सो ऐसी चीज़ें मत करो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान है। सेकेंड थिंग, एंटी सोशल एक्टिविटी, मतलब टैक्स टाइम टू टाइम पे कर लो। ओके, जस्ट आई टोल्ड लास्ट एग्जांपल दैट इज सैनिटाइजर, जो सैनिटाइजर के नाम पे पानी में कलर डाल के बेच रहे हो। सो सच काइंड ऑफ एक्टिविटी यू शुड नॉट कैरी इन योर बिजनेस। सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी डेवलप करने के लिए हेल्प होगा। नेक्स्ट, ब्रिंग हार्मनी इन वर्क। Bring harmony in work means what? See, within work or within organizations, there are n number of employees are working within that. So all employees, they have the different background, they have different attitude. So it is the responsibility of manager. So manager should try to bring a harmony within the employees, harmony within the work. So work is also divided into the n number of department. So department should be linked with each other. So then only whole work it is going to be completed. So harmony, bring harmony in work का मतलब क्या है? अभी जो भी बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं वो बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट रहता है, उनका एटीट्यूड, मेंटालिटी, एबिलिटी, काम करने का तरीका डिफरेंट रहता है। तो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को एक ही चेन में डालो, एक ही तरह का काम करने के लिए बोलो, नहीं तो हार्मनी, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एटीट्यूड, सो देयर विल बी द चांसेस ऑफ चॉइसेस और कन्फ्लिक्ट। सो वहाँ पे क्या बोलते हैं, झगड़ा होने का चांसेस बहुत रहता है। तो यू शुड नॉट गिव द इम्पोर्टेंस you should not give importance for such things. Okay, so trying to reduce the conflict, try to solve the conflict, और जो भी unbiased things है वहाँ पे वो कम करने की सोचो। अदरवाइज वर्क इज डिवाइडेड इनटू द डिपार्टमेंट, तो
जो भी काम है बिजनेस का वो डिपार्टमेंट वाइज कैरी होता है। प्लानिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी चेक हुआ, देन सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। सो जो भी चीज़ें हैं सभी डिपार्टमेंट को काम कंप्लीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें हार्मनी ब्रिंग करो, उसमें कोऑर्डिनेशन ब्रिंग करो। सो इट इज गोइंग टू बी ब्रिंग बाय द management. So these are the importance of management. So I hope you got the clear concept about what are the objectives of management and what are the importance of management. Suppose if you have any doubt, we will discuss in live class. So thank you.